Hello dear students, welcome to lecture number 5 of logarithms. In last lecture we have solved question number 5 and question number 6 to study the laws of logarithm. Now the question number 7, again we can use the laws of logarithm for solving the equations also. क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है सॉल्व फॉर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. First question is log of x plus 3 plus log of x minus 3 is equal to log of 16. तो given equation है given log of x plus 3 plus log of x minus 3 is equal to log of 16. Using log a plus log b is equal to log of AB, A into B. Using the law of product, we can write this as log of x plus 3 into x minus 3 is equal to log of 16. Again, using the note that if log of m is equal to log n, then we can write m is equal to n. Using this, we can say that therefore this x plus 3 into x minus 3, x plus 3 into x minus 3 is nothing but equal to 16. Therefore, x square minus 9 is equal to 16. Therefore, x square is equal to 25. And if x square is equal to 25, hence we can say that x is equal to plus or minus 5. अब देखिए x की वैल्यू प्लस और माइनस 5 आई, लेकिन जब x की वैल्यू माइनस 5 लेते हैं तो माइनस 5 प्लस 3 इट बिकम्स माइनस 2 एंड लॉग ऑफ माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहां पे हम लिखेंगे बट x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 5. माइनस 5 x की वैल्यू हो नहीं सकती. क्यों हो नहीं सकती? क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 5 के लिए ये x प्लस 3 और x माइनस 3 दोनों निगेटिव आते हैं और निगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं देख सकते, इसलिए हमें इस वैल्यू को ओमिट करना पड़ेगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x. समझ में आया? जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगे तो दोनों वैल्यूज हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे वेदर इट इज पॉसिबल फॉर x और नॉट. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट, log of 3x plus 2 minus log of 3x minus 2 is equal to log 5. तो therefore देखिए given equation है log of 3x plus 2 minus log of 3x minus 2 is equal to log 5. Therefore we can write log of 3x plus 2 upon 3x minus 2 is equal to log 5. क्या यूज किया है यहां पर हमें? Since we can write log a minus log b is nothing but equal to log of a by b. Log a minus log b is equal to log of a by b. Now, therefore we can say that now log of m is equal to log of n. Therefore, 3x plus 2 upon 3x minus 2 is nothing but equal to 5. Since we have used here, if log of m is equal to log of n, then we can write m is equal to n. समझ में आ रहा है आपको? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, it becomes 3x plus 2 is equal to 15x minus 10. Therefore, we can write 2 plus 10 is equal to 15x minus 3x. Therefore, 15x minus 3x is 12x is equal to 12. तो x की वैल्यू आएगी 1. यहां पर x की a की वैल्यू आई है, इसका मतलब वो एग्जिस्टेबल वैल्यू है. x की वैल्यू 1 यहां पे डालने के बाद x इज इक्वल टू 1, तो ये log 5 माइनस
x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 माइनस 2 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 5 इज इक्वल टू log 5 आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो x की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको नोट करो, जल्दी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन, 2 into log of x to the base 10 is equal to 1 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10। अब इस इक्वेशन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये टर्म लॉग वाली है, ये टर्म लॉग वाली है, लेकिन यहां पे बीच में ये जो टर्म आई दिस इज विदाउट लॉग 1 है। लेकिन किसी भी नंबर को लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो याद रखिए log of a to the base a 1 होता है, log of any number to same base ये हमेशा 1 होता है। तो इस 1 को हम आपको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, जैसे log of 3 to the base 3 ऐसा लिख सकते हो, इस 1 को हम log of 5 to the base 5 लिख सकते हो, इस 1 को आप log of 20 to the base 20 लिख सकते हो। यानी आपको जो जरूरत हो उस हिसाब से हम इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पे बेस 10 है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 into log of x to the base 10 is nothing but equal to log of 10 to the base 10 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तीनों जगह पे अब बेस 10 वाले लॉगरिथम आ गए, तो यहाँ पे हम log a प्लस log b को एक साथ करेंगे और यहाँ पे इस 2 को इसके सर पे लेके जाएंगे, तो ये log of x स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल टू आएगा log of 10 इंटू x प्लस 11 बाय 10 टू द बेस 10। समझ में आया? अब देखिए ये log of x स्क्वायर टू द बेस 10 और log of this term to the base 10, तो दोनों तरफ का log हम एलिमिनेट कर सकते हैं। therefore we can say that x स्क्वायर is equal to 10 into bracket x plus 11 by 10। तो मल्टीप्लाई कीजिए, therefore we have x स्क्वायर is equal to 10x plus 11। therefore x स्क्वायर minus 10x minus 11 is equal to 0। नाउ 11 के फैक्टर्स, माइनस 11 के फैक्टर्स जिनकी एडिशन माइनस 10 हो, ऐसे माइनस 11 और प्लस 1, तो इसके हम फैक्टर्स डायरेक्टली लिखेंगे, x माइनस 11 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आएगी, x की एक वैल्यू आएगी 11 और दूसरी वैल्यू x की आएगी माइनस 1। माइनस 1 वैल्यू चलती है कि देखते हैं यहां पर, माइनस 1 वैल्यू log ऑफ x टू द बेस 10 है, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, therefore we can say that but x cannot be, या and की जगह पे और लिखेंगे, x cannot be equal to minus 1, therefore we can say that x is equal to 11। x की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको लिखो जल्दी से, आगे चलेंगे। फोर्थ वन दैट इज log 2 plus log of x plus 3 minus log of x minus 3x minus 5 is equal to log 3। तो यहां पे यूज करते हैं log a plus log b minus log c। जो माइनस वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, यानी यहां पे होगा therefore log of ये आएगा 2 into bracket x plus 3। ये प्लस में है इसलिए ये इनका प्रोडक्ट होगा 2 into x plus 3 डिवाइडेड बाय 3x minus 5 is equal to log 3। तो क्या होगा, दोनों तरफ से log एलिमिनेट हो जाएगा, therefore we have 2 into bracket, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2x plus 6 divided by 3x minus 5 is nothing but equal to 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, it is nothing but 2x plus 6 is equal to 9x minus 15। therefore 6 plus 15 is equal to 9x minus 2x। तो 9x minus 2x यानी आएगा 7x is equal to आएगा 15 plus 6 21। therefore x की वैल्यू आएगी 3। 7x is equal to 21,
therefore the value of x is 3. समझ में आ रहा है? तो in this way we can solve any equation related to log कंटेन हुआ, अगर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो log को एलिमिनेट करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, which is the last question from these 3 laws of logarithm. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने. Now look at for question number 8. If a square is equal to b cube is equal to c raised to 5 is equal to d raised to 6, then show that log of abc to the base d is equal to 31 by 5. अब देखिए, 4 टर्म्स है ए बी सी डी, इनके पावर्स में जो रिलेशंस है वो रिलेशन हमें बताया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब इज इक्वल टू सी रेज टू 5 इज इक्वल टू डी रेज टू 6, और हमें लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस डी निकालना है. आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, ए बी सी की जगह पे बी सी डी हो सकता है, यहाँ बेस में ए, या यहाँ पे ए बी सी डी भी हो सकता है, बेस में ए भी हो सकता है, बेस में डी भी हो सकता है, बेस में बी और बी सी भी. ठीक है, यानी बेस कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी टर्म, कोई भी टर्म्स, 3 टर्म्स या 2 टर्म्स या 4 टर्म्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा सॉल्व कैसे करने का, अगर बेस डी है तो हमें ए बी और सी तीनों के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डी फाइंड करना है. अब कैसे करना है देखिए, एज गिवन a square is equal to b cube is equal to c raised to 5 is equal to d raised to 6. बेस d है, ये बेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. देखिए बेस d है, इसलिए हम इस a स्क्वायर को लिखेंगे d raised to 6, b क्यूब यानी d raised to 6 एंड c raised to 5 यानी d raised to 6. बेस क्या है, d है, इसलिए हमने a स्क्वायर को d के साथ, b को d के साथ और c को d के साथ ही कंपेयर किया. अब हमें a b और c के वैल्यूज निकालने हैं. अब a स्क्वायर की वैल्यू अगर d रेज टू 6 है तो दोनों साइड का पावर 1/2 लेते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं. बोलेंगे हम कि स्क्वायर रूट अगर लिया तो a इज इक्वल टू आएगा d रेज टू 6/2 और b इज इक्वल टू आएगा d रेज टू 6/3 एंड c इज इक्वल टू आएगा d रेज टू 6/5. ये समझेगा. देखो ठीक है, क्या किया हमने, इसका a की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाला, यानी रेज टू 1/2 किया, रेज टू 1/2. इसका क्यूब निकालने के लिए हमने रेज टू 1/3 किया दोनों साइड में, यानी क्यूब रूट निकाला. और ये c रेज टू 5 है, ये 5 निकालने के लिए हमने रेज टू 1/5 किया, दोनों साइड में पावर किया 1/5, तो यहां का 5 निकल गया और ये 6/5 हो गए. समझे ये? तो यहां पे a की वैल्यू हमें मिल गई d क्यूब, b की वैल्यू मिल गई d स्क्वायर और c की वैल्यू मिल गई d रेज टू 6/5. अब हमें वैल्यू निकालनी है log ऑफ a b c टू द बेस d. Therefore, log of ABC to the base D is equal to log of, ब्रैकेट में A की वैल्यू रखेंगे D क्यूब इंटू B की वैल्यू रखेंगे D स्क्वायर इंटू C की वैल्यू रखेंगे D रेज टू 6/5 टू द बेस D. तो क्या होगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये d रेज टू, हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस पता है, ये सभी के बेस सेम है, तो ये होगा 3 + 2 + 6/5 टू द बेस d. अब हमें पता है यूजिंग लॉग ऑफ a रेज टू x टू द बेस a इज इक्वल टू x. तो उसके हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू आएगा 3 + 2 + 6/5, दैट इज इक्वल टू 5 + 6/5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लीजिए, इट इज 25 + 6/5, यानी देयरफॉर
ये log of ABC to the base D is nothing but equal to 31/5. समझ में आया? तो चलो लिखो फटाफट। यहां पे इस 3 लॉ के पूरे जितने चाहिए हमें सफिशिएंट है, लॉज आपको समझ गए होंगे, इसके सब एग्जांपल्स हमने खत्म किए। अब 4th लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, उसे चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। उस लॉ को हम सीखते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ। नाउ लुक एट दिस लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। इफ m, a and b are positive real numbers such that a is not equal to 1 and b is not equal to 1, then log of m to the base a, it can be written as, देखिए यहां पे बेस a है और हमें बेस समझो चेंज करने का है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं log of m to the base b upon log of a to the base b। हमें जो चाहिए वो बेस हम ले सकते हैं। समझो आपको यहां पे log of 16 to the base 8 है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं है, हमें बेस 2 करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी ये बहुत ही यूजफुल है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज log of 16 to the base 2 upon log of 8 to the base 2। बेस जो 8 था उसके लिए बेस हमने 2 बना दी। ऐसा हम कर सकते हैं। क्या चेंज हुआ है देखिए। अब इसको हम सॉल्व करना भी बहुत इजी होता है, तो हम इसे log of 16 जो है उसको 2 raised to 4 to the base 2 और ये log of 2 cube to the base 2। अब बेस सेम हो गया तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है हमें पता है, तो ये आएगा 4, ये भी आएगा 3, तो आपका आंसर 4/3 आएगा। यानी इट इज वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस लॉगरिथम्स आल्सो बाय चेंजिंग द बेस ऑफ लॉगरिथम। तो ऐसे हम बेस, हमें जहां जरूरत पड़े वहां पे हम बेस चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको प्रूव करना है और इसके कुछ करोलरीज आपको सीखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है। हम कंसिडर करते हैं, लेट ये log of m to the base a is equal to x, log of m to the base b is equal to y, or log of a to the base b, log of a to the base b is equal to z। Therefore, using definitions of logarithm, लॉग की डेफिनेशन हम यूज करते हैं, तो ये होगा m इज इक्वल टू a रेज टू x। इसको फर्स्ट लिखेंगे हम, वैसे m इज इक्वल टू आएगा p रेज टू y, इसको सेकंड लिखेंगे, एंड थर्ड में है a इज इक्वल टू b रेज टू z। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। log of m to the base a को x माना, log of m to the base b y और log of b to the base a to the base b को z। तो m की वैल्यू आ गई a रेज टू x, यहां पे m की वैल्यू आएगी b रेज टू y और यहां पे a की वैल्यू आएगी b रेज टू z। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट कैन यू ऑब्जर्व, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ m। तो हम लिखेंगे a रेज टू x इज नथिंग बट इक्वल टू b रेज टू y, a रेज टू x इज इक्वल टू b रेज टू y। लेकिन हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है, b रेज टू z, तो therefore we can say that this a can be written as b रेज टू z रेज टू x इज इक्वल टू b रेज टू y। इसे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड जो है a इज इक्वल टू b रेज टू z। तो ये a की वैल्यू हमने यहां पे रख दी, समझ में आ रहा है आपको।
तो ये होगा b का पावर x इंटू जेड इज इक्वल टू b रेज टू y। अब देखिए दोनों साइड में बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम ये इंडाइसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। तो x क्या है? x इज नथिंग बट log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a। ओके, इज इक्वल टू y क्या है? log ऑफ m टू द बेस b, और z क्या है? z log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो ये वाला फॉर्मूला आपका प्रूव हो जाता है, यानी हम कहीं पर भी ये चेंज ऑफ बेस यूज कर सकते हैं। अब इसकी करोलरीज है कुछ। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं m इज इक्वल टू सपोज b है, m की वैल्यू b हमने इसमें डाल दी, तो क्या मिलेगा देखिए आपको। Therefore it becomes log of b to the base a is equal to log of b to the base b upon log of a to the base b। अब मुझे बताओ ये log of b to the base b क्या होता है? क्या होता है log of b to the base b? That is nothing but 1। तो हमें क्या मिलेगा? Therefore यहां पे मिलेगा log of b to the base a is nothing but equal to, ये log of b to the base a is equal to 1 upon log of a to the base b। Means these terms are reciprocals of each other। इसको याद रखना है, जब भी आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना हो तो उसको 1 अपॉन लिखे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक आधे जगह पे आपको ऐसा दिखा है log of 10 to the base 5, लेकिन हमें ऐसा यहां पे बेस 10 होना है तो इसको ऐसे सिर्फ लिखेंगे 1 अपॉन, तो इसके लिखेंगे log 5 to the base 10। समझे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा? ये इधर अगर आए तो log of a to the base b into log of b to the base a, ये 1 एज अ फॉर्मूली याद रखना है इसको। log a to the base b into log of b to the base a, ये हमेशा ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी जल्दी। चलो हम आगे इस पे के कुछ फॉर्मूले लिखने वाले हैं। हो गया? लिख लिया सबने? ओके, चलो मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने इस पे के चेंज ऑफ बेस पे के इंपॉर्टेंट। मेन रूल एक ही है, जैसे log ऑफ m टू द बेस n ऐसा है तो हम इसको log ऑफ m अपॉन log ऑफ n ऐसे लिख सकते हैं। जहां बेस नहीं होता वहां बेस ईव होता है, वो याद रखो। ठीक है, यानी जब भी आपको log ऑफ m टू द बेस n है तो इसको हम log ऑफ m अपॉन log ऑफ n लिख सकते हैं, ये याद रखना। दूसरी बात याद रखना वो वाले, दैट इज log ऑफ m टू द बेस n is the reciprocal of log of n to the base m। log of m to the base n is the reciprocal of log of n to the base m। तीसरा पार्ट याद रखना कि log of a raised to x to the base a raised to y अगर आता है, log of a raised to x to the base a raised to y अगर आता है तो it can be written as directly x upon y। अब ये कैसे आता है देखिए, जैसे देखो log of a raised to x to the base a raised to y है, दोनों की एक ही पावर्स है, तो यूजिंग चेंज ऑफ बेस
we can write it as log of a raised to x upon log of a raised to y, right? तो ये होगा, अब यूजिंग द इंडेक्स लॉ ऑफ इंडेक्स, वी कैन राइट इट एज x इंटू लॉग ए, और डिनोमिनेटर को लिखेंगे y इंटू लॉग ए। तो ये log a कैंसिल हो जाएगा, इज नथिंग बट x अपॉन y। तो ये फॉर्मूला याद रखना, log of a raised to x to the base a raised to y, it can directly be written as x upon y। इसके साथ ही और फोर्थ वन, अगर log of a टू द बेस a रेज टू x है तो इसको 1/x लिखेंगे हम, ठीक है। log of a बेस में क्या है, a रेज टू x, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे 1/x। और फिफ्थ वन याद रखो, log of a रेज टू x टू द बेस b रेज टू y, a रेज टू x टू द बेस b रेज टू y, तो इट कैन बी रिटन एज x अपॉन y into log of a to the base b, x upon y into log of a to the base b। यानी ऐसा है तो ऐसा, या ऐसा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा है तो ऐसा भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक आधे जगह पे ऐसा है 3/2 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस log of 5 to the base 2। तो यूजिंग दिस लॉ वी कैन राइट इट एज, ये जो 3 है इसके सर पर और ये जो 2 है इसके सर पर हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log of 5 cube to the base 2 square, यानी इट कैन बी रिटन एज log of 125 to the base 4। log of 125 to the base 4, it can be written as 3/2 into log of 5 to the base 2। समझे? समझ में आ रहा है? तो फटाफट लिखो इसको। ये सभी लॉज आपको याद रखने हैं और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। टू मेमोराइज दिस लॉ केयरफुली, दिस इज द लास्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिस पे हमें डिपेंडेंट क्वेश्चंस लेने हैं। और आफ्टर दैट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉमन लॉगरिथम, यानी लॉग टेबल लॉग बुक में कैसा देखते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलो इसको नोट करो। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें का फर्स्ट है log of 81 to the base 2 upon log of 9 to the base 2। तो देखिए इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू log of 81 to the base 9, क्योंकि हमें पता है सिंस log of a to the base b it can be written as log of a to the base m upon log of b to the base m। हमने ये जो लॉ है इसको उल्टा यूज किया सिर्फ। log of a to the base b it can be written as log of a to the base m log of b to the base m। तो log of a to the base m and log of b to the base m it can be written as directly log of a to the base b, log of 81 to the base 9। तो अब 81 can be written as log of 9 square to the base 9। अब log of 9 to the base 9 ये निकल जाएगा, आपका आंसर आएगा 2। समझ में आ रहा है आपको? चलो लिखो फटाफट। इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड वन, वो है log of 5 to the base 2 upon log of 11 to the base 2 in minus log of 5 to the base 4 upon log of 11 to the base 4। फिर से हम यही लॉ यूज करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? इट कैन बी रिटन एज log of 5 to the base 11 and minus
ये है log ऑफ 5 to the base 11। तो ये सेम टर्म्स आ गए, log ऑफ 5 to the base 11 एंड log ऑफ 5। यहाँ पे बेस 4 था, उसको निकाल दिया हमने, log 11 बेस किया, इसको भी 11 बेस किया। तो नाउ log of 5 to the base 11 and log of 5 to the base 11 both get cancelled, it is nothing but 0। इसमें का जो थर्ड एग्जांपल है, log of 7 to the base 4 upon log of 5 to the base 4 into log of 5 to the base 9 upon log of 7 to the base 9। तो देखिए, it becomes, this is log of 7 to the base 5 into, this is nothing but log of 5 to the base 7, and now we can write it directly 1, क्योंकि हमें पता है since log of a to the base b into log of b to the base a जो है that is always equal to 1, ये हमेशा 1 होता है। समझ में आया? तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। चलो लिखो फटाफट। नेक्स्ट, फोर्थ वन, नंबर 4, log of under root of 5 to the base 25 into log of 1 by 9 to the base 3। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करते समय देखिए, इसको हम ऐसा करेंगे, जैसा लॉ है हमारा log of root 5 अपॉन log of 25, सेपरेट कर दो। उसका बेस कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, बेस कुछ नहीं मतलब उसका ई बेस होता है। तो log of root 5 to the base 25 it can be written as log of root 5 upon log 25, और ये लिखते समय ये होगा into log of 1 by 9 अपॉन log 3। तो देखिए ये क्या बनेगा, इट इज नथिंग बट log ऑफ रूट 5 यानी 5 का पावर आएगा 1 by 2 अपॉन ये है log ऑफ 5 स्क्वायर इनटू ये जो 1 by 9 है, इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 9 यानी 3 का स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, जैसे 1 by 9 है तो ये 1 by 3 स्क्वायर हो गया, और इट कैन बी रिटन एज 3 रेज टू -2, इसको 3 रेज टू -2 लिख सकते हैं। तो ये log ऑफ 1 by 9 क्या होगा, 3 रेज टू log ऑफ 3 रेज टू -2 अपॉन log 3। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये 1 by 2 इधर आएगा, 1 by 2 इंटू log 5 अपॉन 2 इंटू log 5 इंटू ये आएगा -2 इंटू log 3 अपॉन log 3। वो ये log 3 कैंसिल हो जाएगा, ये log 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 के साथ ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे रहा माइनस साइन, यहां पे रहा 1 by 2, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा -1 by 2। क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी हर एक इसमें हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे यहां पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो -2 आ गई। समझे? लिखो फटाफट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट के लिए बोला है, शो दैट क्वेश्चन नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन है शो दैट, इसमें नंबर 1 है log of root x to the base y into
log of y cube to the base z into log of cube root of z square to the base x is equal to 1. तो देखिए इसकी LHS लेते हैं. LHS is equal to log of root x to the base y into log of y cube to the base z into log of cube root of z square to the base x. तो अब कैसे बनेगा देखिए, ये इज इक्वल टू, ये होगा log ऑफ रूट एक्स. रूट एक्स यानी एक्स का पावर क्या होता है 1/2 डिवाइडेड बाय log y इंटू ये log ऑफ y क्यूब डिवाइडेड बाय log z इंटू log ऑफ, अब क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर यानी z का पावर कितना, क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर, क्यूब रूट यानी रेज टू 1/3 और ये स्क्वायर, तो ये आएगा z रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाय log x. तो लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके, लॉ ऑफ इंडेक्स यूज करके ये आएगा, ये 1/2 इधर जाएगा यानी 1/2 इंटू log x अपॉन log y इंटू ये 3 इधर आएगा, 3 इंटू log y अपॉन log z इंटू फिर ये 2/3 इधर आएगा, 2/3 इंटू log z अपॉन log x, log z अपॉन log x. अब कैंसिल कर दो, ये log x और ये log x कैंसिल होगा, ये log y और log y कैंसिल होगा, ये log z, ये log z कैंसिल होगा, ये 2 के साथ ये 2 और ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल हुआ यानी इसका आंसर 1, that is nothing but equal to RHS. So therefore we can say that LHS is equal to RHS, hence proved. इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. समझ में आया? चलो इसको लिख लो और आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा. अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और अगले लेक्चर जब आप करोगे तो आपके पास लॉग बुक होना जरूरी है. क्या जरूरी है? लॉग बुक. मार्केट में मिलता है 12-13 रुपए को एक बुक मिलती है छोटी सी, जिसमें आपको नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, जिसको हमें कैसे देखना है, उसका यूज करके कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो हमें देखना है. ठीक है, तो उसके लिए वो लॉग बुक आपके पास रहना जरूरी है. आज के लेक्चर में इतना ही काफी है. थैंक यू, बाय बाय.